তাদের আমি জিজ্ঞেস করব, मैं उन लोगों से पूछना चाहती যখন हूँ, দুনিয়ার ডাক্তাররা প্রতিবাদে স্ট্রাইক जब করছে, पूरे दुनिया के डॉक्टर ने प्रतिवाद तो আমরা मतलब কিন্তু वो किया है, ডাক্তারদের विरोध किया। বিরুদ্ধে विरोध একটা किया है। অ্যাকশন নিইনি। তার কারণ हम भी আমি उनके মনে खिलाफ कोई করছিলাম एक्शन नहीं लिया। ওদের আন্দোলনটা সংগত, ওরা ওদের বন্ধুর বিচার চাইছে। हम उनके आंदोलन को सम्मान करते हैं, वो अपने दोस्त के लिए फैसला चाहते हैं। যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল এখনো পর্যন্ত যারা কাজে জয়েন করেনি কিছু করবেন না, পরে এটা রাজ্যের উপর ছেড়ে দিলাম। আজকে কতদিন হলো 9 থেকে আজকে কদিন হলো 9 তারিখে পুলিশ ডেড বডি পেয়েছে। आज कितने दिन हुए? 9 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिली है। রাত 3টে নাগাদ ডেড বডি ক্রিমেশন হয়েছে। সারা রাত জেগে কাজ করেছে। আমি নিজে 11 তারিখটা বাদ দিয়ে তার কাজ ছিল বলে, मैं खुद 11 तारीख को काम छोड़ के ছিল বলে 12 তারিখে সকালে তাদের বাড়িতে গেছি। 12 तारीख को सुबह उनके তার घर বাবা गया, মাকে বলেছি उनके मम्मी पापा से বলুন मिला हूँ, আপনারা কি बोला বলতে हूँ চান, वो क्या আপনারা मांग कर रहे আমাদের हैं, কাছে কি কি চান, आप मेरे से আপনাদের क्या কি কি क्या मांग দাবি। करते हैं। আমি পুলিশ কমিশনারকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। मैं पुलिस তার कमिश्नर को আগে साथ लेके गई थी। যে কেসটা দেখছে আমাদের পুলিশের, जो তিনি केस पुलिस সমস্ত जो ভিডিও केस রেকর্ডিং देख रहे थे, দেখিয়ে সিসিটিভি मैंने ফুটেজ उनको सारे দেখিয়ে फुटेज वगैरह, সব प्रूफ report वगैरह তার বাবা মাকে দেখিয়ে सब दिखाया उनके मम्मी पापा को। আমি শুধু বলেছিলাম मैंने सिर्फ ये बोला है, আজকে সোমবার, आज सोम আমাকে मंडे है, শনিবার পর্যন্ত টাইম দিন। शनिवार तक मुझे टाइम दीजिए। মঙ্গল, বুধ, मंगल बुध বৃহস্পতি, वीर शुक्र শনি, शनि 5 দিন। 5 दिन। মঙ্গলবারের মধ্যে সিবিআই হয়ে গেল। তার मंगलवार মানে के কোনো अंदर ही বিচার सीबीआई চায় না, चेंज, কেসটাকে सीबीआई को জলে केस दे ফেলে दिया দিল। गया, केस को पानी में फेंक दिया আজ इन्होंने। কদিন হলো, आज कितने दिन हो गए? আজ কদিন হলো ঘটনা ঘটে, ওরা পেয়েছে आज মঙ্গলবার। कितने दिन हो गए इस मैटर को, मतलब घटना को? সিবিআই অর্ডার হয়েছে কোর্টে, क्या मिला प्रूफ? সম্ভবত মঙ্গলবার, তাই তো। সন্ধ্যেবেলায় কাগজপত্র পেয়ে গেছে, शाम को कागज वगैरह सब कुछ তারপরে मिला। মঙ্গলে মঙ্গলে फिर उस बाद मंगलवार करते रहे। মঙ্গলে 15, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16 आज 16 दिन हो गए। 16 দিন হয়ে গেল, কোথায় গেল বিচার? 16 दिन हो गए, कहाँ गया বিচার চাইতে विचार হবে, वगैरह? कुछ नहीं हुआ। বলতে হবে, बोलना বিচার पड़ेगा, চাই, বিচার চাই, आवाज उठाना पड़ेगा, জবাব দাও सीबीआई, जवाब भी देना বিচার पड़ेगा চাই, सीबीआई বিচার को। চাই, জবাব দাও सीबीआई, ফাঁসি চাই, फांसी भी चाहिए, জবাব দাও सीबीआई। फांसी देना पड़ेगा, जवाब दो सीबीआई। जवाब दो सीबीआई। আজকেও জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল আছে, আমি চাই তারা आज भी जूनियर डॉक्टर का वो আমার है, সমর্থন आंदोलन है। ছিল আছে, मैं থাকবে। चाहता हूँ कि তারা मैं অনেক चाहती हूँ कि পরিষেবা शांति দেয়। से, अच्छे माहौल से हो। সাথে সাথে আমি বলবো, साथ में मैं আপনারা ये भी তো बोलूँगी, আপনারা তো অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষকে সেবা দেবার জন্য आप लोग इंसान को सेवा সুপ্রিম देते কোর্ট हो। রিকোয়েস্ট করেছে सुप्रीम कोर्ट ने भी সবাইকে रिक्वेस्ट কাজে किया যোগ है দেবার জন্য। सबको काम पे অনেক মানুষ वापस आने के लिए। পরিষেবা না পেয়ে মারা গেছে। बहुत এরা से গরিব लोग हॉस्पिटल में सेवा ना যারা मिलके বড়লোক, কোটিপতি, बेचारे অনেক টাকা मारे আছে, गए। তারা প্রাইভেট হাসপাতাল ট্রিটমেন্ট করতে পারে। जो কিন্তু गरीब যারা लोग हैं वो গরিব क्या লোক, प्राइवेट তারা हॉस्पिटल পারে में না। जाके इलाज कराएंगे अपना? কোথায় যাবে कहाँ जाएंगे? বলুন তো? गरीब लोग। একটা প্রেগন্যান্ট লেডির যদি বাচ্চা एक মানে pregnant জন্মানোর ladies সময় হয়, ডাক্তাররাই তো बच्चे তার के delivery-টা बच्चा করে, डिलीवरी সে के কি टाइम wait पे করতে পারে? তার তো একটা वो वेट সময় नहीं कर থাকে। सकती डॉक्टर একটা का। হার্ট অপারেশন को যদি কারো হার্ট অ্যাটাক হয়, अगर किसी का हार्ट সঙ্গে अटैक সঙ্গে होता तो ব্যবস্থা क्या নিতে होता হয়। जब डॉक्टर এই अवेलेबल नहीं थे ধরনের तो? অনেক রোগ আছে যা আপনারা করেন, সিনিয়র ডাক্তাররা সাথে থাকে, জুনিয়র ডাক্তাররা করেন, এর থেকে আপনারা ট্রেনিংটাও পান, ট্রেনিংটাও হয়ে গেছে, হয়ে যাক। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, मैं आप আমি लोगों को আজকে वादा कर meeting रही हूँ, করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি, আপনারা हम लोगों ने আন্দোলন করেছেন, कोई আমি व्यवस्था কোনো नहीं लिया, आप ব্যবস্থা लोगों ने আপনাদের आंदोलन বিরুদ্ধে किया নেব है, না। কারণ मैंने আমি कोई যেহেতু एक्शन মনে করি नहीं लिया। আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে मैं পারে, समझ रही हूँ ক্ষোভ आपके থাকতে मन में পারে, क्या আপনারা चल रहा है, आप বিচার लोगों को চাইছেন। क्या दुख हुआ है, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন लेकिन अभी धीरे धीरे करके आप लोग वापस आइए काम पे, করুন, তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন नहीं तो বলেছিলেন, सुप्रीम कोर्ट ने कहा এরপর था থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে इसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन ले सकती है। চাই না, তার और मैं কারণ एक्शन नहीं लेना আমি चाहती। চাই ওরা ভালো করে अब পড়াশোনা मैं चाहती हूँ अच्छे से আমি যদি पढ़ाई हो কারোর डॉक्टरों का, বিরুদ্ধে FIR जूनियर করি, डॉक्टरों का, और वो তার ज्वाइन करे ভবিষ্যৎটা काम पे নষ্ট सीनियर হয়ে डॉक्टर। যাবে। সে আর কোথাও मैं किसी chance का পাবে फ्यूचर না, खराब नहीं passport करना পাবে না, चाहती। visa পাবে না। अच्छा
আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে লিগালি অ্যাকশন নিই সে বিচার और পাবে मैं না। अगर किसी সে डॉक्टर মনে के রাখবে या आंदोलन जो তার कर रहे हैं জীবনটা उनके পুরো নষ্ট खिलाफ হয়ে अगर যাবে। कोई एक्शन लेती আমরা हूँ সেটা চাই तो না। उनका उसका আমাদের फ्यूचर সরকারে खराब ना हो, মানবিক मैं ये মুখ नहीं আছে। चाहती। মানবিক মুখ দিয়ে আমি আরো ডাক্তার मैं তৈরি इंसान করতে हूँ, চাই। मैं इंसानियत के नाते सोच रही हूँ। এবং আমরা একমাত্র গভর্নমেন্ট मैं हमारा एक ऐसा सरकार है নারী সুরক্ষার জন্য जो हम नारी सुरक्षा के लिए আমরা ডাক্তারদের জন্য তৈরি করেছি। और डॉक्टर के लिए हमने तैयार किया है। 100 কোটি টাকা স্যাংশন করেছি। 100 करोड़ যদি रुपए का কোথাও অন্ধকার सैंक्शन থাকে किया है। আলো লাগাতে বলেছি। সিসিটিভি जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट लगाने के लिए যদি बोला है, जहाँ কোথাও कैमरा नहीं हो restroom-এর कैमरा অভাব लगाने থাকে, के लिए बोला है। সেগুলো করে দিতে বলা হয়েছে। আপনারা জানেন হেলথ আগে কি ছিল আর আজকে হেলথটা ওয়েলথ হয়ে গেছে। पहले हेल्थ क्या चीज़ थी, अब দুর্ভাগ্যজনক हेल्थ ঘটনা ঘটলে এটা আমাদের সকলের बहुत পরিবারের खराब हो ঘটনা गया। হিসেবে আমরা নিই। আমরা মনে করি না সে একটি পরিবারের মেয়ে, আমরা মনে করি সমগ্র পরিবারের মেয়ে। जिस लड़की के साथ एक दुष्कर्म हुआ है हम सोचते हैं वो किसी एक परिवार के नहीं, हर परिवार के हैं लड़के। এখন তো একটু সিস্টেম চেঞ্জ হয়েছে। अब हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं। থার্ড ইয়ার বা ইউনিভার্সিটি 5th ইয়ার 6th ইয়ার এখন হয়ে গেছে সেমিস্টার। সুতরাং সেইভাবে তৈরি করে আমি প্রাপ্তব্য সেখানে আছে, আমি বলবো যে তাকে একটা টাইম টেবিল তৈরি করে এসবগুলো থেমে যাক, পুজোটা হয়ে যাক, ये सब कुछ ठीक हो जाए, दुर्गा पूजा हो जाए, तो उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्कशन करके हम डिसीजन लेंगे। দেখলেই সেটা টিভিতে এমন করে দেখানো হয়। अभी जो चीज़ चल रही है टीवी में ऐसी दिखाई जाती है जैसे हर जगह आग लग गई हो। শুনুন, আমি যখন রাজনীতি করতাম मैं जब राजनीति करती थी ভোট নিয়ে তারা করেছিল, मुझे डंडा लेके भगाते थे, बम लेके भगाते थे। বক্সিরা জানে সেদিনকে তাদের পাড়ায় একটা রেস্টুরেন্ট ছিল স্যাঙ্গু ভ্যালি, আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে না দিলে সেদিনই আমায় কোপ মারতো। रेस्टोरेंट के पास एक घर था, वहाँ मैं छुपी थी उस टाइम पे, স্লোগান দিচ্ছিলাম, वरना उसी दिन ही मुझे मार আমাদের देते। দুটো ছেলেকে গাড়িতে তুলে সিপিএম এর हमारे दो बंदे को सीपीएम के 2 गुंडों ने गाड़ी में उठा के लेके गए थे। আমি আর অশোকা তখন আমার সাথে থাকতো, ছুটে গিয়ে मैं और अशोका सहयोगी है, থাপ্পড় মারি, हम दोनों भागे उनके पीछे और थप्पड़ मार के हम उनको रेस्क्यू किया हमने। ऐसे हालात का सामना हमने बहुत किया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमें मारा नहीं गया। आंदोलन कैसा होता है मुझे पता है, আমি বন্দুকের সাথে লড়াই করে এসেছি, मैं बंदूक के आगे खड़ी होकर भी लड़ी हूँ। লড়াই করে এসেছি, আমি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। আর আজকে যে একটু ভালো কাজ করব, आज जो मैं थोड़ा अच्छा काम करूंगी वो काम भी मुझे करने नहीं दे रहे। जिस दिन बीजेपी पावर में आई है 2014 से बंगाल के लिए अभिशाप बन गए हैं। অর্থনীতি ধ্বংস করো, इकोनॉमी डाउन कर दिया है, যাতে কাজ করতে না পারে, पूजा में गरीब लोगों को काम ना मिले, ये चाहते हैं बीजेपी। যারা ধর্ম কর্ম মানে না, जो धर्म वर्म नहीं मानते हैं, ধর্ম নিয়ে কথা বলে, इलेक्शन के टाइम धर्म लेके बात करते हैं। ক্লাবগুলো পুজো और করলে कुछ ही दिन बाद पूजा है, গরিব মানুষ ঢাকি থেকে শুরু করে कुछ गरीब लोग उस पूजा में मतलब सहयोग देंगे, काम करेंगे। লোকশিল্পী থেকে শুরু করে বাউল থেকে শুরু করে হকার ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে দোকানদারেরা থেকে শুরু করে तो छोटी छोटी दुकानें जब जो काम करेंगे, जो इनकम करेंगे पूजा के टाइम पे, वो सब चीजें बंद करने के लिए सोच रहे हैं सरकार। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, कोई सोच रहे हैं ये बांग्लादेश है, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, और कोई ये सोचता है कि मैं बांग्लादेश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उस वहाँ की तरह बात करती কিন্তু हूँ। মনে রাখবেন लेकिन याद रखना बांग्लादेश एक अलग है, भारत एक अलग राष्ट्र है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, मोदी जी अब अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं। বাংলায় যদি আগুন লাগান, बंगाल में अगर आपने आग लगाया तो हम रुकेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे। উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, झारखंड और जो स्टेट का नाम लिया है और वहाँ के लोग भी नहीं रुकेंगे, सब हिला के मतलब वो कर देंगे। मोदी जी हालात खराब करा रहे हैं अपनी पार्टी से, ये बोल रहे हैं। দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इलेक्शन से लड़ो, ডেড বডি নয়, गोली नहीं, লাশ নয়, बम नहीं, लाश नहीं, खून কেন नहीं। করছো না ফাঁসির জন্য যে এই সব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে?
কেন এই আইনটা করছো না? ये सब चीजें करने से क्या फांसी हो जाएगा অভিষেক मुजरिम যেটা को? বললো আমি তো সেটা লিখেছি। আমি এখনো বলি নরেন্দ্র মোদি मैं अभी भी बोल रही हूँ मोदी जी, কতটা আমায় চেনে আমি জানি না। आपका पार्टी के लोग मुझे কিন্তু আমি कितना এটা মনে করি, जानते हैं ये যতই मुझे नहीं पता, funding করুন, लेकिन जितना भी आप फंडिंग करते हैं, ফান্ডিং করছেন আপনারা, बहुत जगह से आप খবর फंडिंग আমরা कर रहे রাখি। हैं, सब खबर हम মনে रखते রাখবেন, हैं। अच्छा। ওই याद रखना, funding কে আমরা এন্ডিং করে দেবো। यही फंडिंग को हम আমরা एल्डिंग করতে कर পারি, देंगे। फंडिंग का এবং एंडिंग कर আমরা देंगे। জানি। हाँ, আমি ছাত্র ছাত্রী সমাজকে বলবো, हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे আপনারা আগামী শুক্রবার आप अगले शुक्रवार को কলেজের গেটে গেটে कॉलेज के गेट पे ফাঁসির দাবিতে फांसी के लिए, এবং ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন कॉलेज के गेट पे फांसी दो। फांसी नहीं, फांसी का डिमांड कर रहे हैं, डिमांड। আমি আমার সব ব্লকগুলোকে অনুরোধ করব, নেতৃবৃন্দরা যারা আছেন কেন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক করেন না? পার্টি যখন করছে আপনাকেও করতে হবে। जब आप पार्टी कर रहे हैं तो आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। अपने लोगों को कह रहे हैं, অল দ্য কাউন্সিলর্স, অল দ্য স্টুডেন্ট লিডার, অল দ্য ইউথ লিডার, সবাইকে আপনাদের কিন্তু এই ফেক ভিডিও কাউন্টার করতে হবে। सब ये फेक वीडियोस वगैरह को आपको fake एनकाउंटर video करना counter पड़ेगा, করতে হবে। আর পুলিশের কাছে सबको FIR काउंटर করতে करना হবে। है, এরকম और पुलिसों के জিনিস पास, দেখলে पुलिस के पास FIR भी करना है, जो ये जो गलत गलत वीडियो फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, এটা মাথায় রাখবেন। ये सब चीजें दिमाग में আমি रखिए। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টদের বলবো, সাথে ছাত্র যুব মহিলারাও থাকবে। मैं अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट और स्टूडेंट से সব कहना ব্লকে चाहती ব্লকে हूँ, মিছিল হবে। মানে 31 शनिवार को আগস্ট दिन 31 সব अगस्त को ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে। सारे ब्लॉकों में ধর্না रैली হবে, होगी, মিছিল করে धरना होगा। হবে। শনিবার হাফ ছুটি, शनिवार को हाफ डे है, इसलिए दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक মিছিল হবে সব शनिवार को ব্লকে। इनकी पार्टी खुद धरना करेगी। हाँ, धरना करेंगे और सड़क पे यात्रा भी करेंगे, मतलब ছাত্রীরা मार्च भी বলবো, निकालेंगे। मार्च भी निकालेंगे। মেয়েরা ব্লকে ব্লকে ধর্না আন্দোलन করবে। लड़कियां और लेडीज जो भी है सब अपने अपने ब्लॉक में धरना करेंगे, फांसी की दाबी मांग करेंगे। মেয়েদের সুরক্ষিত করবার আইন मैं আমরা लेडीज को और लड़कियों को सुरक्षा दूंगी। মোদির গভর্নমেंट डोंट डिरेल द मोदी गवर्नमेंट प्लीज रिमेंबर प्लीज याद रखिए, burning and we are facing because of you, because you people are not taking any law. Country is burning and your law is very weak. Your law is only strong for ED, PML, যাকে চ্যালেঞ্জ করে নেবেন, but your law आपके is पास not सारी strong है, ईडी about है, the जो women नाम लिया है, security, about आपको the जिसका मन करेगा आप उसको capital punishment. अरेस्ट We कर want लोगे। capital punishment. हमें फांसी की सजा चाहिए। দেখুন এটা যদি হয় আমি আপনাদের বলছি সব থেমে যাবে। আর যারা ধর্ষণ করে তাদের जो लोग धर्षण करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसके लिए कोई संपत्ति नहीं लेंगे। আইনি থাক আর যার আইন থাকে থাকুক, আইন যদি বেআইন হয় তাহলে আইন কানুন আইনে अगर आप রূপান্তর तोड़ोगे, করবে মানুষেরা, এটা আমি বিশ্বাস করি। ছাত্র ছাত্রীদের কাজ হচ্ছে সমাজ সেবা করা। स्टूडेंट का काम है ছাত্রছাত্রীদের समाज কাজ को सेवा রুখে करना। দাঁড়ানো। ছাত্রছাত্রীদের কাজ সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ছাত্রছাত্রীদের কাজ মানুষের स्टूडेंट का পাশে काम है দাঁড়ানো। अपने आप को साबित करना। ছাত্রছাত্রীদের কাজ আমি দেশের জন্য মাথা নত করব। मैं अपने देश के लिए सर झुका सकती हूँ, इन सब लोगों के लिए सर झुका सकती हूँ, लेकिन मैं बंगाल के लिए मैं सर नहीं झुका सकती। मतलब আমাকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন, मुझे बहुत गाली दी है इन्होंने, করেছেন। बहुत আমি बेइज्जती की है, অনেক ভেবেছি, मैंने কিন্তু बहुत আমি कुछ ভেবে দেখলাম सोचा है, যে এদের বিরুদ্ধে আমি কোনোদিনও বদলা নিইনি। लेकिन আমরা इनके বলেছিলাম বদল চাই, বদলা নয়। আজ मैं चाहती हूँ বলছি, बंगाल ও কথা নয়। बदले, আজ বলছি যেটা लेकिन করার मुझे बदला দরকার, नहीं लेना, मैं देश को बदलना चाहती हूँ। সেটা আপনারা ভালো বুঝে করবেন। আমি অশান্তি চাই না, কিন্তু উৎসব প্রচার চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, আপনি তাকে কামড়াবেন না, কিন্তু ফস্ত করতে পারেন। जो आपको काट रहे हैं वो आपको, उसको आप वापस मत काटिए, आप सही है उसको। তার কাছে গিয়ে বলেছিল, ঠাকুর विवेकानंद जी ने कहा है, বারণ করেছো, আমি কাউকে কামড়াই না, কিন্তু আমাকে অনেকে ইট মারে, আমার রক্ত পড়ে। एक सांप ने भगवान को कहा है ঠাকুর कि आपने मुझे काटने के लिए कहा है, लेकिन लोग मुझे पत्थर मारते हैं। তোমাকে আমি ফোর্স করতে
বারণ করিনি। আগামী দিন আপনাদের কাজ হচ্ছে চক্রান্তকারী। Thank you, Sukhdev. Thank you. ফোর্স করতে শিখুন, ফোর্স করতে শিখুন, ফাঁস করে দিন। तो आपने ममता बनर्जी को सुना, सुखदेव हमारे सहयोगी स्टूडियो में उन्होंने ट्रांसलेट कर रहे थे, सारी बातें उनकी समझ में आई। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं हमें फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। बार बार उन्होंने कहा फांसी कौन देगा? सीबीआई के पास केस है, वो कह रही है। मेरी पुलिस के पास केस नहीं है, सीबीआई के पास केस है। वो कह रही है मोदी जी, ईडी, सीबीआई सब तो आपके पास है, फांसी क्यों नहीं देते? महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं देते? उन्होंने सारा मामला जो है मोदी जी पर ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई आपकी है, फांसी दिलवाओ। अब वो कह रही है मैं शनिवार को धरना दूंगी, हर ब्लॉक में हमारे सहयोगी जो है पार्टी के वो धरना देंगे। उस दिन हाफ डे है, हम जिस आधे दिन जब काम होगा उसको हम लोग बाधित नहीं करेंगे। 2 बजे के बाद से हमारा धरना शुरू होगा। तो ममता बनर्जी अब इस धरने का जवाब, प्रदर्शन का जवाब खुद अपने धरने प्रदर्शन से दे रही है। वो कह रही है हम भी आपको बताएंगे कि धरना क्या होता है। वो कह रही है मैंने लाठी, गोली, डंडा सब खाया है, मैं बंदूक के सामने खड़ी होकर के मैंने अपनी बात कही है, मैं डरती नहीं हूं, मुझे मालूम है प्रदर्शन कैसे होता है। फिर उन्होंने बोला कल जो लोग प्रदर्शन में आए थे कौन थे? क्या ये छात्र थे? छात्रों को नहीं मालूम है नवन्ना जो सचिवालय उसका रास्ता क्या है? इन्होंने राजभवन में जाकर पत्थर मारा। तो वो कह रही हैं कि ये अर्जेंट कॉल पर लोग बुलाए गए थे, किराए पर लोग बुलाए गए थे, कल जिन्होंने प्रदर्शन किया वो छात्र नहीं थे। फिर उन्होंने एक अपील आज जो प्रदर्शन डॉक्टर्स कर रहे हैं उनसे की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अपने घर जाइए, आपको आश्वासन दिया है, मैंने आपसे कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अगर आप लोग नहीं लौटते तो आप पर एक्शन लूं, लेकिन मैं किसी का करियर खराब नहीं करना चाहती, मैं किसी डॉक्टर के ऊपर कोई केस दर्ज करना नहीं चाहती। इसलिए आप जो लोग आपकी सेवा के अभाव में मर रहे हैं उनके बारे में सोचिए और अस्पताल को जाइए। अब आइए जरा स्टूडियो में हम जरा इस राजनीति की हम बात करें। अवधेश जी, ममता बनर्जी अपने उसी फायरी अंदाज में है, झुकने का नाम नहीं, ना उनको लग रहा है कि उनकी सरकार ने या पुलिस ने कुछ गलत किया। देखिए ममता बनर्जी का ये जो आज जो कुछ भी बोली है इसके 2 भाग में देखिए। पहले भाग में तो मैं ममता को बिल्कुल अभिनंदन करूंगा कि इतना कुछ होते हुए भी अपनी पार्टी का साहस बनाए रखना, उसको संघर्ष के लिए तैयार करना, लोगों को समझा देना कि मैं सही हूं, मैं लड़की के घर गई हूं, न्याय करवा रही थी, पुलिस पहुंच गई थी और अभी भी उसके लिए हूं। लेकिन जो लोग न्याय नहीं चाहते हैं वो सीबीआई को देते हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे केवल केंद्र की सरकार है और नेता नरेंद्र मोदी हैं। तो एक युद्ध ममता बनर्जी ने ठान दिया है और उन्होंने देखिए आज पूरी तैयारी से आई थी, ये नहीं केवल भाषण दिया है, भविष्य के संघर्ष का एक रूपरेखा दिया है, डॉक्टरों को बताया है कि हम कैसे पूरे सिलेबस और काम को चेंज कर रहे हैं, कैसे काम के घंटे में बदलाव ला रहे हैं, कैसे हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, कैसे हम नियम बदलने जा रहे हैं दुर्गा पूजा तक। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए। शुक्रवार और शनिवार को अभी 2 दिनों का उन्होंने कहा है। शुक्रवार का महत्व आप पश्चिम बंगाल के लिए जानते हैं, दोपहर को लगभग पश्चिम बंगाल बंद रहता है। उस दिन हर विश्वविद्यालय के सामने यानी छात्रों का प्रदर्शन है, तो छात्र निकले कि हमें फांसी चाहिए उस व्यक्ति की। किसकी फांसी चाहिए? जिसका केस सीबीआई लड़ रहा है। उन्होंने सीबीआई पर अटैक किया कि मैंने तो उसको सोमवार तक उसकी माता पिता को उनको वचन दिया था। आज कितने दिन हो गए, सीबीआई जवाब दे वो क्या करती है। उन्होंने कहा कि हमको रोकने की कोशिश, आपको रोकने की कोशिश पीएमएलए कानून से, सीबीआई से, ईडीआई से की जाती है, लेकिन हमने पहले भी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं जानती हूं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, हम झुकेंगे नहीं। यानी यह एक युद्ध है, आप खड़े हुए, मैं न्याय के साथ हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहती हूं, मैं लड़की को न्याय दिलाना चाहती हूं, सुरक्षा देना चाहती हूं, हमारे लिए सुरक्षा बंगाल की सड़कों पर यह युद्ध चलेगा। अब ये देखिए ममता जी की सरकार है, उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसीलिए दूसरा पहलू यह है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ वो सही था, हमारी सरकार की कहीं गलती नहीं। पुलिस कमिश्नर को लेके गए, पुलिस कमिश्नर ठीक है, अस्पताल ठीक है, सब कुछ ठीक है, केवल राजनीति करने वाले ये सारा कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और अपने लोगों को। अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, वो कह रही है इस धरने से क्या होगा, वो खुद क्यों धरना देने जा रही है? नहीं, जब तो उन्होंने बताया ना कि आपके जिम्मे में काम दे रही हूं, सोशल मीडिया देखो और जो भी फेक वीडियो हो, जो कुछ भी हो, वो कोई भी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया, उसके खिलाफ एफआईआर करो। यह युद्ध का एक पूरा तरीका लेके आया। उन्होंने पुलिस को कहा कि एफआईआर करो पुलिस में जाकर के,
पार्टी को कहा सड़कों पर उतरो, छात्रों को कहा सड़कों पर भाई उतरो। उनकी अब आप उनकी लड़िए। पार्टी और उनकी सरकार तो पहले ही सोशल मीडिया पर जो कोई बोल रहा है उसको नोटिस भेज रही है। आज ममता जी ने उसको ऑफिशियल कह दिया, अपने लोगों को कह दिया कि जाओ तुम लोग सोशल मीडिया पर जो भी कुछ देखो गलत, जाकर पुलिस पे कंप्लेंट अब करो। ये तो देश को तय करना है, हमको आपको तय करना है, वामपंथी दल, भारतीय जनता पार्टी, सबको तय करना है कि एक युद्ध का ऐलान हो गया है। कोर्ट पर भी हमले हुए हैं कि महाराष्ट्र में कोर्ट कुछ और है और हमारे राज्य में कोर्ट कुछ और है, यानी हमारे साथ कोई नहीं है, फिर भी मैं न्याय के लिए हूं, देश के लिए झुक सकती हूं, लेकिन बंगाल को मुझे सिर्फ एक बात मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आ रही है विजय जी। उन्होंने कहा हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, हमें फांसी चाहिए, हम कॉलेज के गेट पे फांसी दे दो। पहली बात तो ये बात उनको करनी नहीं चाहिए थी। वो कह रही मुझे शांति चाहिए, तो अपने लोगों को क्यों उतरने के लिए कह रही हैं सड़क पर? शनिवार को क्यों वो धरना देना चाहती हैं? देखिए, आपने पूरा भाषण सुना, मैं उनको एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, ये पॉलिटिकल स्पीच है पूरा का पूरा, और अपने कैडर को एड्रेस कर रही है। और इस पूरे एड्रेस का मतलब क्या है? इस एड्रेस का मतलब ये है कि पूरा केस अब केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर वो देरी हो रही है, फांसी नहीं मिल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो अब हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। बंगाल को उन्होंने, जो मुझे लगता है, एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि फ्राइडे को वो ये नहीं कह रहे कि फांसी देंगे, वो कह रहे कि हम फांसी की डिमांड वहां पर करेंगे फ्राइडे को कॉलेजेस के बाहर, कि फांसी दी जाए दोषी को। और सैटरडे को उनका जो ब्लॉक है, फ्राइडे को तो वो अपने कॉलेजेस के बच्चों को कह रही हैं कि वो वहां पर अपने करें, लेकिन सैटरडे को पूरी जो पार्टी है वो ब्लॉक लेवल पर भी प्रदर्शन करे और मांग करे कि भाई इसके खिलाफ जो होना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा। और वो सीधा टारगेट ये कह रही हैं कि अब हमारे पास नहीं है ना केस, आप क्यों हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? आप इसको समझिए। ठीक बात है। उनका कहना है कि भाई पुलिस के पास तो है नहीं केस, हमारे पास था, हमने कहा था कि कर देंगे, आपने किया नहीं, आपने सीबीआई को दे दिया। तो अब तो वो मांग करेंगी ना सीबीआई से, धरने केंद्र का जवाब सरकार से। धरना, प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन। नहीं, आप इसको नहीं समझ रहे। आप कह रहे कि ये तो मामला ही अब केंद्र सरकार का समझ है। गया सर जी, लेकिन वो सरकार भी तो चलानी है, प्रशासन उनको हाँ, तो वो चलाएंगे। और उन्होंने कहा जो फेक वीडियो आ रहे हैं उसकी जो है आप एफआईआर करवाएं, पुलिस को कंप्लेंट कराएं। तो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अगले हफ्ते आपको एक तरफ सड़कों तो पर कह रही है दिखाई मुझे दे। काम नहीं करने दे रहे और खुद अपने लोगों से अपील कर रही है सड़कों पर उतरो। मेरा कहना केवल इतना है, पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि ठीक है भाई केस तुम्हारे पास है, मैं तुमसे मांग करने के लिए सड़क पर आ रही हूँ। बट आफ्टर ऑल शी इज द चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चीफ वो मिनिस्टर पार्टी अपनी के पार्टी लीडर के के लोगों को तौर कहे कि आप पर, सड़कों पर पार्टी उतर के जाओ। लीडर के तौर पर वो उन्होंने कह कहा रहे कि हैं। मैं इसी तरह राजनीति में आई हूं, ध्यान दीजिए। मैं कह रहा था उन्होंने कहा है कि इसी तरह आई हूं, हम पर हमले हुए, गोली वो कह रहे चली, हैं कि हम मतलब पर मैं डरने लड़ाई वाली करने नहीं हूं। आती है। देखिए, वो चीफ मिनिस्टर इसी वजह से हैं और वो जो कह रही हैं उसको आप लोगों के भी ध्यान में रहे, नहीं तो कोई भी बोल देगा कि भाई अब तो केंद्र के पास चला गया, सीबीआई चला गया। ये जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि अगर राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को नहीं कहना पड़ता कि सेंट्रल एजेंसी आए, नंबर एक। नंबर दो, ये वहां जितने एविडेंस हैं, जहां जहां जो हो सकता था वो सब गड़बड़ किया गया, इसके खिलाफ ये सब हो रहा है। और जो मैं बाइक वाला कह रहा था, जो कोलकाता पुलिस का जो क्लैरिफिकेशन है वो मैंने अभी पढ़ा, वो कह रहे हैं कि सारे जितने पुलिस के हैं वो सीपी के नाम पर ही होते हैं। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि जो एक्यूज्ड की बाइक थी वो पुलिस की बाइक इस्तेमाल कर रहा था। तो ये तो और खतरनाक, तब तो सीधे सीधे सरकार इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। सीबीआई के पास जांच गई है, केंद्रीय एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है और अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और मुझे बताइए ना, देश के किस हिस्से में किसी प्रदर्शन में इस तरह से नेताओं के ऊपर जो धरना प्रदर्शन करे उनके ऊपर गोली निशाना लगा के चलाने वाले देश के किस हिस्से में ऐसी घटना होती है? वो सिर्फ बंगाल में होती है। बम भी चला, वो सब कर रही हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और अभी भी देखिए जिस तरह से वो कह रही है, और जो उन्होंने कहा है कि हम अगले हफ्ते विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, 10 दिन में फांसी वाला बिल पास करेंगे, गवर्नर को भेजेंगे, और अगर उन्होंने लौटाया तो हम मान जाएंगे कि वही सब कर रहे हैं। मतलब ये पूरी जो पॉलिटिक्स है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं भी कोई इच्छा नहीं। भले वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, भले कह रहे हैं कि हम फांसी चाहते हैं, उनकी एकमात्र कोशिश है कि ये सब कुछ उठकर नरेंद्र मोदी के ऊपर आ जाए। इसके अलावा ठीक है, मैं इस वक्त बंगाल के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं, वो 16 दिन से 15 दिन से ये कुछ चल रहा है, 20 दिन से जब से कांड हुआ 7 तारीख का, और उसके बाद से अब ये पहले डॉक्टर्स थे सड़कों पर, उसके बाद बीजेपी वाले सड़कों पर आ गए, अब खुद वो उनकी पार्टी सड़कों पर आएगी। और आपने कहा युद्ध के लिए तैयार वो कर रहे हैं अपने लोगों को, आपने कहा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। अब मतलब अब यही मिलने वाला है बंगाल के लोगों को। देखिए, ममता बनर्जी इस बात को अब देख रही है कि इसका राजनीतिक लाभ
अगर भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, और ये जो मामला जिस तरीके से तुल पकड़ गया, ममता बनर्जी को लगा नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। आज उनको एक मौका मिला कि आज तृणमूल कांग्रेस के छात्र इकाई का स्थापना दिवस था। ममता बनर्जी ने उस दिवस का और उस भाषण का पूरा बंगाल के लोगों को और देश की जनता को संदेश देने का काम किया है। और ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस घटना का कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, भले मैं बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, मैं सड़कों पे उतरूंगी और इसके खिलाफ नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है वो नहीं बनने दूंगी। देखिए, ममता बनर्जी को एक अपहरण यह लग रहा है कि ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई आपने मेरे से केस लेकर, राज्य सरकार पे आपको भरोसा नहीं था, आपने मेरे से केस लेकर आपने सीबीआई को दे दिया कि सीबीआई न्याय करेगी, तो अब सीबीआई न्याय करे उसके अंदर। सीबीआई बताए कि इसने अभी तक क्या सबूत जुटाया, सीबीआई बताए वो कब तक कल्प्रिट को पकड़ के फांसी की सजा देगी। और ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए सीबीआई फांसी की सजा नहीं देती है, सीबीआई तो केस करेगी, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट में मामला चलेगा। वो तो ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि यह पूरा मामला इतना बढ़ गया है कि ममता बनर्जी की सरकार की चूल्हे हिलने की स्थिति में आ गई है। और जिस तरीके से कल जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसको मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा ये तो अर्जेंट कॉल पर बुलाए गए लोग थे, ये छात्र थे क्या? तो ममता बनर्जी नहीं मानेगी उसको। ममता बनर्जी तो कहेगी वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, लेकिन वो छात्रों का आंदोलन था। जिस तरीके से कल आंदोलन हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद को बुलाया, और आज तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि अगले 7 दिन वो धरना प्रदर्शन देंगे, हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दे दी है। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा तो उनको सरकार चलाना मुश्किल होगा और उनके ऊपर इस बात का दबाव बढ़ता जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। तो उनको लगता है आंदोलन का जवाब आंदोलन से दे करके मैं चलती रहूंगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आप सरकार में हो, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हो कि आपको डरना नहीं है, झुकना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर जमीनी स्तर पर इसको लेकर नैरेटिव बनाने के लिए मौका मत दो। आप जमीन पर लड़ो, मैं आपके साथ हूं। वो सरकार चलाएगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप जमीन पे उतरो। और यही मुझे लगता है कि उसका काउंटर अटैक करने की वो कोशिश कर रही है। जी विजय जी, नहीं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा था, अभी मुझे अचानक याद आया कि एक इंडिया ब्लॉक भी है। तो वो इंडिया ब्लॉक कहाँ खड़ा है? आज वो कुछ साफ कर सकते हैं ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं या ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े? क्योंकि पूरे इस पिक्चर में एक बड़ी घटना हो रही है, उसमें अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खरगे जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई भी लीडर उस पर नहीं बोल रहा, महिला लड़की को लेकर नहीं बोल रहा। यदि आप उसके साथ नहीं, ममता जी के साथ हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकली साथ होना चाहते हैं। तो आज जैसे ये काम हो रहा था तो शायद एक प्रदर्शन कर लेती ममता जी के भी, सारे इंडिया ब्लॉक को बुला के कहते कि ये बीजेपी सरकार जो है वो गलत कर रही है। लेकिन मुझे इंडिया ब्लॉक भी यहाँ पर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मुझे अधीर रंजन चौधरी नाम के व्यक्ति बैठे तो हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को आप कांग्रेस में करें, कांग्रेस अभी उनको नहीं मानती ना अपना। देखिए, उस ब्लॉक के मामले में तो मुझे लगता है कि मतलब क्लियर कट ब्लॉक, हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, लेकिन नहीं, आपका सवाल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं उस ब्लॉक में क्लियर कट ब्लॉक्स मैं उनको भाजपा का जब अपना सवाल आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या बंगाल स्ट्रीट वायलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है? वही मैंने कहा, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का मतलब वही होता है। आप उसको स्ट्रीट वायलेंस ही वहां हो रहा है, पहले इसको स्पष्टता से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 11 से ममता आ गई तो स्ट्रीट वायलेंस बंद हुआ। इतना तेजी, मैंने इसीलिए 9, 10, 11 का साल बताया, जो वामपंथी वायलेंस था उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। जब वो दब गए, वो कमजोर पड़ गए, तो ये सत्ता में आ गए। अब ये पूरी तरह से शासन में थे, इसलिए वो वायलेंस दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो जहां भी है 50 लोग मिलकर 2 लोगों को पीट देते थे। गली में निकले पीट दिया, बस्ती में पीट दिया, गोली चला दी, बम मार दिया। अब लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, अब वो दिख रहा है। और उस पर ममता बनर्जी, जिसको कहते हैं ना कि जब कोई दिया बुझने लगता है तो बहुत जोर से फड़फड़ाता है, मुझे ममता बनर्जी अब उस अंदाज में दिख रही। क्योंकि अगर किसी सीएम को, वो भी ममता जी जैसी सीएम को, अगर वो सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है कि गेट पर आओ, प्रदर्शन करो, चौराहे में जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ, काउंटर करो, फेक वीडियो आ रहे, इसका मतलब यह हुआ कि सारी मशीनरी, सारा प्रशासन, सारा पुलिस बल लगाने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रही, और जनता अब लड़ रही है। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस ना। नहीं, देखिए, अब इसी थ्योरी पे सर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आप आऊंगा। आपने कहा ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, अब मैं वही तो कह रहा हूं, अटैक। अब ये अटैक जो है, अटैक केवल शब्द में रहे तो ठीक है, ये सड़क पर अगर ये रूपांतरित होता है तो फिर क्या होगा? शब्द शून्य नहीं होते। एग्जैक्टली। अब ऐसे सोचिए जरा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, वहां पर कोई घटना हो जाती है, अखिलेश यादव प्रदर्शन करेंगे, उस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए क्या योगी जी ये कहेंगे अपने बीजेपी वालों से, भाई तुम भी उतरो सड़क पर जाकर धरना दो, इनका तुम भी जाकर के कॉलेजों के सामने बैठ जाओ? होता नहीं है ना ऐसे, क्योंकि आप सरकार चला रहे हो, आपका काम है। अगर वहां आपके सामने पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहा है, उसका जवाब ये कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं।